Hello, subscribers and my dear students. Today I am starting lesson 9. Lesson 9, Strategies for Enhancement in Food Production. Okay, so first topic is animal husbandry. So animal husbandry, okay, I am reading my notes very slowly so that all of you can write and understand. So first topic is animal husbandry. Animal husbandry, it is the agriculture practice of keeping, feeding and breeding of cattle so that good quality of cattle can be produced is called animal husbandry. It include dairy farming, poultry farming, beekeeping, that is known as apiculture, and fisheries. Okay, so dairy farm management, in board examination they can ask which types of precaution you will apply in opening the dairy farm या dairy house. Okay, so now dairy is the management of animal for milk production. If we want to manage the dairy farm, following precaution should be applied. Number 1, cattle should be vaccinated. Number, place should be airy and hygienic. Number 3, cattle are seasonal breeder, so their breeding should be regularly maintained. Listen again, third point, cattle are seasonal breeder, so their breeding should be regularly maintained. Point 4, balance feeding with proper amount of drinking water. 5, sick cattle should be eliminated or cured by veterinary doctor. So these are the 5 precautions you will apply when you start the dairy farm. Okay, इंडियन ब्रीड ऑफ काव. इंडियन ब्रीड ऑफ काव में देखें, बोर्ड में एक 1 मार्क में पूछ सकते हैं, गिर, रेड सिंधी एंड साहिवाल. एग्जॉटिक ब्रीड ऑफ काव, जर्सी, इंग्लैंड, इंग्लिश चैनल में मिलती है. नंबर 2, ब्राउन स्विस, स्विट्ज़रलैंड एंड फ्राइजन, यूरोप. एग्जॉटिक का मतलब होता है विदेशी, तो गाय की विदेशी नस्लों में ये 3 नस्लों के नाम यहाँ पर आ गए. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज आउट ब्रीडिंग. व्हेन क्रॉस अकर्स बिटवीन आर आउट ब्रीडिंग. ब्रीडिंग is applied in 3 ways. Number 1, outcrossing. Outcrossing, it is the process of mating of animal of same breed. They do not have the common ancestor up to 4 to 6 generation. यानी एक ही ब्रीड में होने वाली ब्रीडिंग जिसमें उनका कोई एक पूर्वज 4 से 6 जनरेशन तक नहीं होना चाहिए. So outcrossing
It is the process of mating of animals in same breed. They do not have common ancestor up to 4 to 6 generation. Now second point, cross breeding. It is the breeding between one superior and another inferior animal which produce superior offspring. Now this is known as cross breeding. Now third, interspecific hybridization, in which male and female cattle of two different species cross to each other and they produce a offspring. इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. इसका एग्जाम्पल हम लेंगे जैसे फीमेल हॉर्स एंड मेल डोंकी. हॉर्स एंड डोंकी दोनों अलग अलग स्पीसीज़ हैं, लेकिन इनका जब क्रॉस कराया जाता है तो इनसे जो ऑफस्प्रिंग बनता है दैट इज़ नोन एज म्यूल. एंड म्यूल इज़ स्ट्राइल. इट मीन्स म्यूल कैन नॉट प्रोड्यूस द फर्दर ऑफस्प्रिंग्स और दे आर ऑफ जनरेशन को वो बढ़ा नहीं सकते. तो दैट्स वाई म्यूल इज़ नॉट ए स्पीसीज़. सो हमने देखा यहाँ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. ओके, म्यूल इज़ स्ट्राइल, सो म्यूल इज़ नॉट कंसिडर्ड ए स्पीसीज़. इंडियन ब्रीड ऑफ बुफेलो. बुफेलो तो हम देखें जैसे बुफेलो में मुर्रा नेटिव ऑफ गुजरात, महसाना नेटिव ऑफ हरियाणा, सुरती नेटिव ऑफ गुजरात. तो हमारे भारत में बुफेलोस की 3 नस्लें मिलती हैं जिसमें मैंने आपको इनके नाम बता दिए हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉल्ट्री. पॉल्ट्री जैसे कि हम जानते हैं कि मुर्गी पालन, POULT, पॉल्ट, इट मीन्स चिकन, एंड द ब्रांच ऑफ एनिमल हस्बेंड्री in which keeping, feeding and breeding management takes place for obtaining meat and egg is called poultry farming. So poultry farming can be divided in 2 groups, broiler and layers. broiler में सब मेल होते हैं, layers में फीमेल हैंस आ गई. तो नंबर 1, दीज आर द मेल. ब्रॉयलर में देखेंगे दीज आर द मेल which are developed for meat purposes. Layer, they are female which developed for egg purposes. Second point, they are developed in 4 to 6 weeks and they are developed in 6 months for egg. They require high protein rich diet for growing weight and they require high vitamin rich diet for their growth. Fourth point देखेंगे, in one cage many cock can be kept and hence require one cage for one hen because of they are egg laying, otherwise they can break the egg. So we understood about that poultry को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक ब्रॉयलर और एक लेयर. ब्रॉयलर में मेल और लेयर्स में फीमेल.
ओके। इंडियन ब्रीड ऑफ फाउल, इंडियन ब्रीड ऑफ फाउल में हम देखेंगे मुर्गों में असील, याकूब, नूरी, काजल, ये सब इंडियन है। इसके बाद एग्जॉटिक ब्रीड ऑफ फाउल में देखेंगे तो रोडे आइलैंड, RHODEISLAND, रोडे आइलैंड रेड। दूसरी वाइट लेगॉन, WHITE, वाइट लेगॉन, LEGHRON। नेक्स्ट मिनारका, MINARCHA। नाउ एनिमल breeding, the process in which good quality of cattle are produced by breeding is called animal breeding. Animal breeding can be divided in two groups, inbreeding and outbreeding. Inbreeding, when breeding occurs between the animals of same breed, is called inbreeding. Now second, outbreeding. Outbreeding, when breeding occurs between the animals of different breed, is called outbreeding. Outbreeding जैसे कि हमने अभी इससे पहले हमने यहाँ किया था। It is the process of mating of animal of same breed. When cross occurs in different, when cross occurs between different breed is called outbreeding. ये डेफिनीशन हम अभी कर चुके हैं, ठीक। इसको मैंने रिपीट किया है। तो अभी हम देख रहे हैं आउट ब्रीडिंग जो है उसके 3 पार्ट हैं, जिसमें हमने देखा आउट क्रॉसिंग, नंबर 2 क्रॉस ब्रीडिंग, नंबर 3 इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ओके, एंड आउट ब्रीडिंग हम समझ चुके हैं। इन ब्रीडिंग में सेकंड पॉइंट, इन ब्रीडिंग इज़ नॉट गुड बिकॉज इट कॉज द इनब्रीडिंग डिप्रेशन एंड जेनेटिकल क्वालिटी इज़ नॉट इम्प्रूव्ड, सो इन फ्यू जनरेशन कैटल बिकम स्ट्राइल। जैसे कि हम आउट ब्रीडिंग अभी समझ चुके हैं इससे पहले। आउट ब्रीडिंग की यहाँ कुछ अलग अलग टाइप हैं, जैसे आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नाउ मोट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोट, MOET, मोट की फुल फॉर्म है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। तो देखें मोट जो टेक्निक है उसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं, इस बात को हम यहाँ पर समझेंगे। फर्स्टली वी एडमिनिस्ट्रेटेड द कैटल बाय गिविंग FSH हार्मोन ट्रीटमेंट। तो जो कैटल होता है उसे पहले हम फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH का ट्रीटमेंट देते हैं, उसको इंजेक्शन देते हैं। सेकेंड, इट रिजल्ट 6-8 ओवा आर प्रोड्यूस्ड इन इट्स ओवरी। तो जिस कैटल को FSH का इंजेक्शन दिया जाता है उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि उसकी ओवरी में 6 या 8 ओवम फॉर्मेशन हो जाती है। थर्ड स्टेप देखें, काउ इज़ मैटेड विद सेलेक्टेड बुल और आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड। अब ये हमारी चॉइस है कि हम जो काउ है उसे 6 to 8 ओवा बनने के बाद अब हम उसे आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड करें या हम किसी सेलेक्टेड बुल के साथ उसका क्रॉस कराएं। फोर्थ पॉइंट, द फर्टिलाइज्ड एग when it forms 8-32 celled
stage are removed and transfer into the surrogate mother। मतलब समझें, जब 6 to 8 ओवा बन गए FSH के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद और हमने उस कैटल को आर्टिफिशियल इंसेमिनेटेड भी कर दिया और हमने या फिर डिज़ायर्ड बुल के साथ क्रॉस करा दिया, तो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद उसमें 6 to 8 एम्ब्रियो बन गए। और जब ये एम्ब्रियो, ये फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो जब 8 से 32 सेल्ड स्टेज में आ गए, तब इन्हें उस कैटल की ओवरी से बाहर निकालकर सैरोगेट मदर में, जो कि कोई दूसरा कैटल जो होता है उसी स्पीसीज़ का, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो को जो 8 से 32 सेल स्टेज में बन चुका है, अब हम उसे किसी सैरोगेट कैटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 5, हाई यील्डिंग ब्रीड ऑफ फीमेल फॉर मिल्क एंड मीट इज़ प्रिपेयर्ड। तो इस तरीके से मोट बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिससे हम गुड क्वालिटी का कैटल मीट पर्पस और मिल्क पर्पस के लिए डेवलप करते हैं। सैरोगेट मदर के ज़रिए हमें एक बेस्ट क्वालिटी का कैटल मिल जाता है। और हमने इसमें 5 टेक्निक समझी। सबसे पहले एक कैटल ले लें, उस कैटल में FSH का इंजेक्शन दें। FSH के इंजेक्शन देने के बाद उसकी ओवरी के अंदर बहुत सारे एग सेल, जैसे 6 to 8, अगर उसकी ओवरी में एक एग सेल बनता था तो 6 to 8 एग सेल बन गए। अब उन 6 to 8 एग सेल्स को लेकर जो उसकी ओवरी के अंदर हैं, अब हम उसे किसी डिज़ायर्ड बुल के साथ या आर्टिफिशियल इंसेमिनेटेड कर देते हैं। तो अब उस कैटल में 6 to 8 एम्ब्रियोज़ बन जाते हैं और वही एम्ब्रियोज़ जब 8 to 32 सेल्स के हो जाते हैं, तब वहाँ से वो एम्ब्रियो लेकर सैरोगेट कैटल, जो कि सैरोगेट मदर या सैरोगेट कैटल है, जो दूसरा कैटल है, उसके अंदर वो एम्ब्रियोज़ ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जिसकी हेल्प से हम बेस्ट क्वालिटी का हाई यील्डिंग और हाई मीट प्रोड्यूसिंग कैटल हम बना लेते हैं। तो इस टेक्निक को हम मोट कहते हैं। एग्ज़ाम में ये टेक्निक बहुत ज़्यादा आती है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है मोट के बारे में, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। इसके बाद हम देखेंगे एपीकल्चर। एपीकल्चर में आता है मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग। इट इज़ known as the apiculture, and it is the process in which keeping, feeding and breeding of honey bees occurs, so that good quality of honey bee and honey can be produced, is called apiculture. It is the part of animal husbandry. Okay, Indian breed of honey bee, Apis indica, Apis dorsata, Apis dorsata and Apis flori। देखें, तीनों के नाम ध्यान से सुन लें। एपिस इंडिका फर्स्ट, सेकंड एपिस फ्लोरी FLORAE, और थर्ड एपिस डोरसाटा APIS, एपिस DORSATA, एपिस डोरसाटा। एक्जॉटिक ब्रीड एपिस एडामासोनी, जो कि इटली की है। ये एक्जॉटिक है, इटली की ब्रीड है मधुमक्खियों की। नाउ सोर्स, honey is high viscous nutritive vitamins, minerals and iron rich compound which is used in medicine
bee wax used in shoe polish and candle. Now precaution. Knowledge of nature and habits of honeybee should be aware. Second point देखें, catching and hastening of honeybee should be in proper location. Third, management of beehive during different seasons. Fourth, handling and collection of honey and from hive. 5, professionally honey production is happening in a wooden box is called as apipray. APIPRAY. Next, honeybee requires the pasturage. pasturage क्या होता है? एक फ्लोरल नेक्टर होता है. मधुमक्खियों को हनी बनाने के लिए फूलों की ज़रूरत होती है, तो वो नेक्टर को सक करती हैं जिससे बनाती हैं, उसी को कहते हैं पेस्टोरेज. सो हनी बी रिक्वायर द पेस्टोरेज फ्लोरल नेक्टर फॉर हनी प्रोडक्शन, बट आर्टिफिशियली in absence of pasturage nutrition can be provided by the sugar powder. तो जहाँ पर पेटियों में मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं तो वहाँ पर शुगर पाउडर यानी भूरा जो होता है वो मधुमक्खियों को फीडिंग के लिए दिया जाता है. जहाँ पेस्टरेज नहीं मिलता, जहाँ पेड़ पौधे नहीं होते, तो उन पेटियों के अंदर मधुमक्खियों की फीडिंग के लिए भूरा शुगर पाउडर रखा जाता है. Okay, so we have completed lesson 9 part 1. So part 2 we will complete later. Okay.